Before that, how do you want me to communicate? Hindi, English, or Hindi plus English, English? Both. Okay, fine. So I'll start a little bit of introduction about me. So I'm Abhinav, and I hail from Delhi, born and brought up in Delhi only. And I did my graduation from IIT Kharagpur. And after graduating, I worked in private sector for about 3.5 years, and first with ITC, and then with Oyo Rooms. So it was largely working in Oyo Rooms. Then I got inclination towards civil services. So हुआ ये था कि we collaborated with Government of India and we were implementing Skill India program. I think सबने पढ़ा होगा Skill India एक policy है. So the idea behind it was कि जो हमारे होटल के स्टाफ होते हैं, we will upgrade their skills, and so that initiative was under me from Oyo Rooms. So I took it as a normal project, and there was one day felicitation ceremony. इतना fancy नहीं था वो, तो मतलब जो भी स्टाफ जिनकी भी स्किल अपग्रेड हो गई है उनको we were distributing certificates, and so I was like कि ठीक है, but one of the person he came to me and he said कि सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी. For him it was a very big thing कि formal education नहीं मिला है और कुछ करना किया है उसने, and that was the day I couldn't sleep that night. I was thinking कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी जिंदगी बदल गई है. So and that's where I thought कि can I do something bigger in life which has more purposeful thing to do, and that's where I thought कि क्या कर सकते हैं. And civil services, I thought of it as a very good way of fulfilling both the purposes of doing good to the people and also having a decent service as well. So that was the kick for me, watershed movement जिसने मेरा decision ही change कर दिया. So it was then I thought कि I can do both things parallelly. जॉब क्यों छोड़नी है, कमा तो रही है, चाहे कुछ भी कमा रहे हो. तो फिर but then I thought कि नहीं, मतलब you cannot do two things at one time. At least for me it was clear. I thought कि I should be fully dedicated to one thing. So I left my job, I resigned and started civil services preparation at that point of time, and I gave my first attempt in 2017, and this was my fourth attempt. So in between I skipped a couple of attempts as well. I'll be talking about it. So that was my first attempt, and I had sociology as my optional, because of which I got in touch with Vivas sir, and then our relation got expanded, or फिर interview and other things. Maybe it's not really restricted to only sociology as such, but it then become guru and mentor and all these things. So and it's been a long association. तब से ही sir के साथ I've been in touch with. So that's a little bit about me, and talking about my attempts. So in 2017, in my first attempt only, I was able to get to the interview stage. I cleared prelims, mains, and interview that point of time, and but unfortunately, I missed the finalist by just 5 marks. So that was a very difficult moment. I still remember there was another student of sir. उनका उस time पे he got 50 or 60 rank. So sir directly compared my mark sheet with him कि मतलब इसमें थोड़ा सा difference है, थोड़ा difference है. 5 marks is like nothing. मतलब अगर आप 4-5 पेपर और 2 optional 7 papers में distribute करो तो it's nothing. So I thought ठीक है, but I attempted in 2018. I got ill during prelims, so I was not able to clear prelims that time. And then in 19, I was like यार इसमें कुछ ही कर देना है. And literally I did a lot of interventions also, which I will be discussing in coming few time. So I did lot of things, and that time also I was able to clear prelims, mains, and interview. So but destiny, I missed the final list by 1 mark that time. तो मतलब मुझे लग रहा था यार मैंने कुछ ज्यादा ही पाप करे हैं पिछले जन्म में. ये तो हो ही नहीं रहा है. And that was literally the lowest moment for me in my civil services preparation, because I was expecting कि कुछ तो better होना ही चाहिए. That better was 4 marks, so which was not good enough for me to clear the prelims, so clear the exam. So I was really shattered, and in fact I didn't give 2020 attempt also. So it will be
आई विल बी से बी रियली ऑनेस्ट, ये मोमेंट, ये थॉट मेरे माइंड में आया था कि आई शुड क्विट सिविल सर्विसेज। ये हो सकता है कि मेरी डेस्टिनी में नहीं है कि मैं एग्जाम क्लियर करूं, and so I was not in the mental state to give 2020 exam, not at all. Apparently I got married also during that year, और फिर 21 में my family, wife, सबने थोड़ा डिस्कस किया, encourage किया कि you should give one again, and I also thought about it because it's not only about what you study, but it's also equally important about कि आप किस mental state में पढ़ते हैं. Are you motivated enough? Because exam itself is of 1 year and you need 1 year at least कि आप पहले उससे पढ़ भी रहे हैं. So you always have to be positive and enthusiastic about going for the preparation. So somehow I gathered myself, दोबारा शुरू किया, मतलब not from scratch but obviously जहाँ से मैंने छोड़ा था. But in all my attempts what I used to think is one simple motto कि I always have to do some delta. If I am here and I am expecting to go here, so this journey cannot be expected because of same input. मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि मैंने जितनी मेहनत यहाँ करी थी या जो यहाँ किया था सेम चीज दोबारा कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ होना चाहिए. So in all my attempts or whenever I used to study, I used to think कि what extra I am doing because of which at least I can promise to, I can say to myself कि I can expect something better results. So I always think about delta. तो वो डेल्टा किया मैंने, हर बार किया था, इस बार भी किया. It was talking, I'll be talking about कि दोनों प्री मेंस में क्या था, but largely it was related to two things. One was related to knowledge, and the other was related to answer writing. I did lot both the things. So I did delta in both the things this time, and that because of which I was expecting कि ठीक है कुछ better होना चाहिए, and luckily मतलब I got 14 rank this time. So that was my UPSC journey so far, and yes, so God has been kind. I had some mentors who used to guide me. So this you have to do on your own, but you need certain guidance and mentors. So I had luckily few people जैसे sir थे who helped me in social and other. So in likewise while I was preparing for GS, so I had Anubhav Sharma sir, so he helped me in GS2 and GS4. So he is also a very, I would say, not only a but a very good friend of mine, and understanding is very good with respect to what UPSC expect. तो उनसे discuss किया था, answers discuss किए थे, and somewhere not only he explains very well, but he has a good grasp over how the UPSC trend is changing. Because if you have seen in last few years, there are a lot of mix between static, dynamic, and even the nature questions, and especially for such topics GS2 and GS4 तो और भी ज़्यादा dynamic होता है. So I think he had a very strong my preparation. Likewise, I had Praveen Dhaya sir who helped me in essay and some part of socio also in answer writing, and not to mention Vibhash Sharma sir तो थे ही. So that has been the civil services journey for me. And boring तो नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैं just बता दिया अपने बारे में कि कैसे था. So that was brief about me, and now I'll just take upon 3 parts: prelims, mains, and interview. Interview is a later stage, so I might take it up very little bit, but pre or mains is something which I'll be discussing more about. Pre is especially which is more relevant to you, and I hope I'm audible to online guys. ठीक है. So Yes, sir. okay, fine, thank you. So ठीक है. तो यार KGF मूवी किसने देखी है? सबने देखी है? 1 and 2 कोई सी भी? दोनों देखी है? 1 तो देखी होगी. रॉकी कौन है तो पता है ना? हाँ तो बस ठीक है. तो यार अगर ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप KGF मूवी से कुछ इंस्पिरेशन या पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहो ना, तो आई थिंक देयर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट इज कि उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला. आई थिंक उसको मोटिवेशन उसकी मदर से मिला था कि मुझे कुछ अचीव करना है. सिमिलरली
फर्स्ट थिंग फॉर यू इज टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन कहाँ से है, ठीक है। तो मैंने अपना मोटिवेशन बताया, मैंने रॉकी का मोटिवेशन भी बताया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि क्योंकि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट द एग्जाम। आपने ये डिसाइड करा है कि मेरे को सिविल सर्विसेज देना है, इटसेल्फ शोज अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर कि यू हैव डिसाइडेड टू समथिंग बिग एटलीस्ट फॉर यू, है ना। दैट इज, सबको एक बार अपने लिए तालियां बजानी। वेरी गुड। क्या सर्विसेज जैसा एग्जाम देने की रहे हो और रहे हो। सेकेंड, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इट्स नॉट फेयर, मतलब लेट बी ऑनेस्ट, आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, प्योर ग्रेजुएट, और स्कूलिंग तो हमने की होगी, तो हम लोग वहां पर एक दिन या आधा दिन पढ़ के चले जाते हैं और पास भी हो जाते हैं सब लोग। मैं ये नहीं बात बोलूंगा कि कैसे पास होते हैं, बट हो जाते हैं। तो यूपीएससी इज एंटायरली डिफरेंट। यूपीएससी इज नॉट समथिंग जो आप आज रात पढ़ें और ये एक्सपेक्ट करें कि मैं कल इसके बेसिस पे आई कैन राइट एंड डू इट। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट। तो वो लॉन्ग टर्म एफर्ट तभी आता है जब आपके पास वो मोटिवेशन क्लियर हो। सो ट्राई टू फाइंड दैट मोटिवेशन। सेकेंड थिंग इज वो क्या बोलता है कि जब बोलता है कि क्या चाहिए, जब मिलता था कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, किसी को पता है क्या बोलता था रॉकी, क्या चाहिए उसको? पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में है दुनिया। वो बोलता था मुझे दुनिया चाहिए, वो उसका ऑब्सेशन था। ही वॉज नॉट स्टॉपिंग समवेयर, ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू मूव अहेड कि मुझे चाहिए, मुझे वो अचीव करना है। दुनिया उसके लिए दुनिया था, आपके लिए एग्जाम है। इट्स सिंपल फॉर, थोड़ा उसने डोमेन छोटा कर दिया आपके लिए। इट्स नॉट दुनिया फॉर यू, इट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर। सो हैव दैट ऑब्सेशन इन द वे कि आप उतनी डेडिकेशन से चीजें कर रहे हो। मोटिवेशन इज फॉर यू टू कंटिन्यू डूइंग इट, एंड ऑब्सेशन इज फॉर यू टू हैव एफर्ट और फोकस इन दी व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू। सो ये दो चीजें थी। आई थिंक थर्ड एंड विच इज मोर इम्पोर्टेंट, आई विल कि पार्ट 2 में अगर किसी ने देखा हो तो उसमें बोलते हैं कि आपका कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है। तो क्या रॉकी के साथ उसकी टीम में उसके पैरेलल वाला कोई आदमी था, या फिर जैसे हम कोई 3 इडियट्स देखते हैं तो 3 लोग थे, क्या केजीएफ में कोई ऐसा उसके अलावा कोई और बंदा था? यस सर। कौन था भाई? नहीं था। इट वॉज वन मैन शो, इट वॉज एवरीथिंग विच ही वॉज डूइंग हिमसेल्फ। उसके नीचे जो टीम थी, दे वर सपोर्टिंग इकोसिस्टम, बट द पॉइंट हियर इज जो उसने डिसाइड किया था, जो उसका ऑब्सेशन था, उसको वो खुद ही अचीव करना है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो दैट्स हाउ, मतलब जस्ट अ वे कि केजीएफ सबको पता ही है, तो आई थॉट ऑफ इट एंड दैट्स हाउ आई लुक्ड एट इट एंड आई आल्सो लाइक द मूवी। पता नहीं बाकी लोगों को पसंद आई होगी कि नहीं, तो आई हैव वॉच्ड इट 2 टाइम्स, तो बोथ द पार्ट। सो बट यस, द थिंग हियर इज व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, आपको एक मोटिवेशन चाहिए, उस पर डेडिकेटेडली करने के लिए एक ऑब्सेशन चाहिए टू डू इट। एंड थर्ड इज, हार्ड फैक्ट यही है, हार्श रियलिटी यही है, इट कैन नॉट बी अचीव्ड इजीली। आपको खुद करना है और मेहनत लगेगी, उसको भी मेहनत लगेगी। So when let down कैसे उसको डील करेंगे? So I'll be coming to it later, but just to answer you in short, कि you have to go back to your motivation कि आपने क्यों ये रास्ता चुना है, so that you get that thing to strive again. ठीक है? So how to do that? I'll be talking about it in just a while. ठीक है? So that is there. तो अब शुरू करते हैं। थोड़ा प्री का बताता हूँ मैं। देखो ऐसा कोई लेक्चर वैसा नहीं है कि हाँ, so we'll be talking about pre, I'll be talking about mains and interview, some part of it. So I'll be just, so before starting, there were, I want to also highlight about help me to do that delta, and which will help you in all the 3. First thing which I did wrong, I'm talking about which I did wrong. First thing which I did wrong was I was looking for someone to spoon feed me. Second thing was
I had fear of answer writing. Please bear with my handwriting. So, and third is I was reading everything under the sun. So यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि मैं जब भी किसी से मिल रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा रेडीमेड मटेरियल मिल जाए कि बस मैं ये पढ़ लूँ और मेरा काम हो जाए. तो इस माइंडसेट से मैं किसी भी सीनियर से, किसी भी टीचर से, किसी भी कोर्स को मैं देखता था. बट दैट वॉज रॉन्ग. वन शुड नॉट एक्सपेक्ट कि यू शुड गेट समथिंग जो आपको डायरेक्टली मतलब थाली में परोस के कहते हैं ना, दे दिया गया. यू कैन गेट गाइडेंस, यू कैन गेट राइट डायरेक्शन. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके टीचर्स आपसे बात करते हैं, मेंटर्स जैसे मैंने नाम दिया, दे गाइड यू. बट अल्टीमेटली करना आप ही को है यार. देर इज़ अ लॉन्ग पाथ विच यू नीड टू ट्रेवल. देर आर सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू डू. देर कैन नॉट बी शॉर्टकट अबाउट इट. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन टू स्पून फीड यू डायरेक्टली. So that is the first mistake which I did, and so I realized it hard way जब मेरा छूटा था. तो but I think you can learn it an easier way by through my experience, and try what you need to do, and not this. I will be talking about it, but this is first thing which you don't, which I did wrong, and I expect you not to do it. Second was I had fear of answer writing. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको 3 घंटे पेपर लिखना है. इट्स नॉट एन ईजी जॉब. और पहले के पेपर्स जो मैं लिखता था वो तो 4-4 घंटे लगते थे तो मुझे पहला पेपर कंप्लीट, पूरे 3 घंटे के पेपर को कंप्लीट करने में. सो आई हैड अ फियर ऑफ आंसर राइटिंग. ऑब्वियसली यार, इट्स अ लेबर थिंग टू डू. एंड वन फील है, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे तो फिर लिख ही लेंगे. बट दैट इज़ नॉट वट इज़ एक्सपेक्टेड. तो यू हैव टू डोंट हैव फियर ऑफ आंसर राइटिंग. In fact, for you, it should be natural to do answer writing and do the written part. So it's also linked to your notes making. I'll be talking about it when I will be discussing mains. So you should not be having fear of writing answers. चाहे 2 आंसर 3 आंसर जो भी लिखते हो, शुरुआत वहीं से करो, but have an habit of writing answers. So 150 word, 250 word, whatever you are doing, to do it. Third is everything under the sun. अब यूपीएससी की मुझसे बहुत लोग बुक लिस्ट पूछते हैं. ठीक है, आप मैंने भी देखी थी, और बुक लिस्ट इतनी लंबी होती है. एनसीईआरटी 50 बता दी, फिर लक्ष्मीकांत बता दिया, फिर ये बता दिया. तो आज ये पढ़ा है, कल किसी और से मिले हो, वो कोई और 3 नई बुक बता देगा. और आजकल तो यूट्यूब पे ही न्यूज़पेपर एनालिसिस के नाम से 10 वीडियो मिल जाएंगी. तो यार आई वॉज ऑल्सो समवेयर लॉस्ट. आई वॉज, जो भी मुझे जो बताता था, मैं सोचता था क्या पता है इसमें कुछ हो, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ. तो आई वॉज रीडिंग एवरीथिंग अंडर द सन. और इंस्टेड ऑफ having my own notes, I would say instead of becoming district collector, I was becoming notes collector. जहाँ से नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स ला के रख लो. पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ तो लेंगे, ला के रख लो. जहाँ भी नोट्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, तो वो बहुत बड़ा पाइलअप हो जाता था. सो ये top 3 mistakes थी. I can elaborate also on this, but these were the top 3 mistakes I will say which I did, and most of normal aspirant also have some of the similar mistakes. So you don't have to do this. What you have to do rather is, I'll be slightly talking about mains here because it is related to mains, and then I'll go to pre. So you have to restrict yourself. If someone can find a crux out of it, you have to restrict yourself. How will you restrict? तो यूपीएससी ने ना आपको 2 बाइबल दी हुई हैं, उनसे ही आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है. फर्स्ट थिंग इज, इसमें नेक्स्ट स्लाइड होता है. हाँ, फर्स्ट थिंग इज यूपीएससी सिलेबस. दिस इज मोर सो फॉर मेंस. एंड सेकंड थिंग इज PYQ. PYQ is previous year questions of by UPSC itself. Obviously, I'm not talking about any test series. ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, चाहे कुछ हो या ना हो. ये चीज आपको होनी चाहिए. उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि उसके बाद याद भी होना चाहिए. याद इन द सेंस ब्रॉडली. लेट्स से फूड प्रोसेसिंग इज अ टर्म विच इज मेंशन्ड इन पेपर 3, है ना. ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन इज समथिंग विच इज मेंशन्ड इन पेपर 1, है ना. सेपरेशन ऑफ पावर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स,
दिस इज अ वर्ड विच आर मेंशन इन पेपर 2। तो इस तरह से, अब मैं यहाँ पे लिख के नहीं लाया हूँ, मुझे याद है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि यूपीएससी सिलेबस में क्या वो कीवर्ड्स हैं, एंड दीज आर एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच आर मेंशन्ड बाय यूपीएससी इन द सिलेबस व्हिच दे हैव गिवन टू यू। दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट यू टू स्टडी एंड नॉट एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है, आपको यहीं से अपने आप को लिमिट करना है। इफ यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ फ्रॉम द यूपीएससी सिलेबस ओनली, तो अब आपको ये, मैंने ये किया था कि मेरे स्टडी टेबल पे सारे सिलेबस चिपका लिए थे जब मैं वो पढ़ता रहता था कि ठीक है, पहले तो एक तो हाथ से ही लिखा था पूरा सिलेबस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस में क्या है। बट ठीक है, यू कैन गेट प्रिंटेड आल्सो, इज नॉट, बट द पॉइंट हियर इज कि यू शुड नो कि सिलेबस में क्या है, इफ नॉट वर्बटिम बट एटलीस्ट एज अ ब्रॉडर को होना चाहिए कि सिलेबस में क्या पूछा गया। सिलेबस को अकॉर्डिंग टू यू टारगेट क्या होता है? कैन वी टेक दिस क्वेश्चंस एट द एंड? स्पेशली ऑनलाइन में आप थोड़ा यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चंस, आई विल बी हैविंग अ डेडिकेटेड Q&A एट द लेटर, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन देयर। सो हाँ, so that is you should at least have an idea. GS4 में there are certain values which are written like integrity, compassion, empathy. ये सब सुना हुआ है क्लास आप लोगों ने? आई थिंक ऐसा फारसी तो नहीं बोल रहा ना मैं? हाँ फिर ठीक है। तो एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सिमिलरली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्री ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली प्री का सिलेबस ना बहुत थोड़ा शॉर्ट होता है ना, वो इतना आप नहीं देख पाते। सो यू नीड अ डिफरेंट अप्रोच वेल गोइंग फॉर प्री, बट फॉर मेंस दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू। आप सिलेबस देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, नोट्स कलेक्टर नहीं नोट्स मेकर बनिए। ठीक है, नाउ पीपल आस्क मी अबाउट कि नोट्स, अपने नोट्स आप बता दीजिए कैसे हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूँ। नोट्स किसी और के नोट्स कभी काम नहीं आएंगे, आपके खुद के नोट्स होंगे। वाई? सो फर्स्ट थिंग, नोट्स इज समथिंग विच यू राइट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आई माइट फाइंड समथिंग वेरी अनकॉमन एंड अनयूजुअल एंड आई राइट इट। सिमिलरली मुझे ऐसा कुछ किसी हर टॉपिक में, लेट्स से अगर प्रेशर ग्रुप ही है, उसमें देयर माइट बी सर्टेन कंटेंट्स विच आर नोन टू मी, कंसेप्ट उसमें मुझे पता होंगे अंडरस्टैंडिंग के, तो आई विल नॉट राइट इट। इफ़ यू आर रीडिंग द सेम नोट्स तो वो स्किप हो जाएगा आपका। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम्स होता है कि हम दूसरे के नोट्स जब पढ़ते हैं ना, तो वो हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो आपको रेफर करने के लिए ठीक है, बट देयर कैन नॉट बी योर ओन टू गो थिंग के लिए आपका अपने ही नोट्स होंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, बिकॉज वो कंप्लीट नहीं होते हैं। सेकेंड इज़ नोट समथिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दैट इज़ योर एक्स फैक्टर। अल्टीमेटली ये कॉम्पिटिशन है। ठीक है, आप अपने नोट्स में कुछ ऐसा लिखोगे जो मे बी किसी और ने नहीं लिखा है, एंड तभी आपके नोट्स डिफरेंट होंगे, और तभी नोट से ही आंसर आते हैं, तो तभी आपका आंसर भी डिफरेंट होगा। एंड थर्ड थिंग इज इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डाइग्रेसिंग, कि आप ये आज अपने नोट्स पढ़ रहे हो, कल किसी और के नोट्स पढ़ रहे हो। अगर आपके नोट्स नहीं है तो आज आप किसी और का मटेरियल पढ़ रहे हो, कल किसी और का मटेरियल पढ़ोगे, परसों किसी और का मटेरियल पढ़ोगे। तो नोट्स इज समथिंग विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डाइग्रेसिंग एंड इट विल हेल्प यू रिमेन ऑन ट्रैक। इफ आई से यू हैव टू लेट्स से रिवाइज एग्रीकल्चर, और यू हैव टू रिवाइज फूड सब्सिडीज, और यू हैव टू रिवाइज सब लेट्स देयर इज अ बफर स्टॉक, ये सभी GS3 के सिलेबस में कीवर्ड्स हैं। तो यू नो कि यार मुझे क्या पढ़ना है। आप ऐसे ब्लैंक नहीं हो कि जाके अब मैं गूगल सर्च करूंगा तब मेरा बफर स्टॉक टॉपिक रिवाइज होगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स, एंड दैट इज माय फर्स्ट एंड सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव नॉट डन इट, सो स्टार्ट डूइंग इट सिंस यू आर अपीयरिंग फॉर 23, so you have good enough time to spend on it. Divide your next 6 months or so in कि आप कैसे सारे GS चारों सिलेबस को कवर करोगे, चारों पेपर को, and start working on it. So that is the first thing which you need to do, and that's how your domain gets restricted. अब जो भी करना है फिर उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन करनी है with respect to current affairs or any new thing which you get to hear or learn about. But your base material should get ready, let's say by end of this year, or maximum by January or so. I'm giving you a broader timeline framework also. So that is what you need to do. And how you will check the sanctity of your notes कि मैंने जो बनाया सही है कि नहीं, उसके लिए जाओ सेकंड चीज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने लेट्स से किसी भी टॉपिक के नोट्स बना लिए, जस्ट गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हर एक में पेपर की थोड़ी स्लाइटली डिमांड डिफरेंट है। GS1 फॉर एग्जांपल, GS1 is history, society,
ये legible है ना? Is it legible? Understandable? And third is geography. Similarly, GS2 is polity, governance, GS3 ये सबसे बड़ा है, इकोनॉमी, SNP और आई वुड से इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी टॉपिक है पता है? डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक है, SNP भी है और एक इन्वायरमेंट भी है। सिलेबस वाइज सबसे बड़ा ये है और नॉलेज वाइज सबसे बड़ा ये है, बस ये बीच में मिक्स है दोनों का। और GS4 इज आई वुड से मोस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस एंड इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम आई थिंक इसी में चाहिए। आई टॉक अबाउट व्हाई, बिकॉज इसमें देयर आर सर्टेन कंसेप्ट्स विच नीड टू बी अंडरस्टूड। टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, डिओन्टोलॉजी क्या होता है, टेलियोलॉजी क्या होता है, दैट इज़ फर्स्ट। एंड सेकेंड इज़ वैल्यूज। तो जब तक आपको कंसेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन नहीं है तब तक आप उसको कोटेशन से रिलेट नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट आते भी नहीं है उसमें कि डायरेक्ट सिंपली टेल मी व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड फीचर्स ऑफ इट। कुछ भी क्वेश्चन आ जाएंगे बट लार्जली नहीं होते इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यू नीड अ लॉन्ग टर्म अप्रोच एंड यू नीड डेडिकेटेडली वर्क ऑन दिस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फुल ईयर जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसको तो हमेशा माइंड में रखना ही है। सो दिस इज़ लार्जली विद रिस्पेक्ट टू कि हमें करना क्या क्या है। हाँ, इसमें इनके नोट्स में ज़्यादातर आपकी फैक्चुअल चीज़ें होंगी, टाइमलाइन बेस्ड होगा, और जैसे आप मुगल लिख रहे हो तो गुप्ता एज लिख रहे हो या मौर्य एज लिख रहे हो तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, दिस इज मोर। इसको भी माइंड में रखो, यहाँ प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको भी माइंड में रखो। GS3 ये सबसे वास्ट है, इसमें सम पार्ट आर कंसेप्चुअल जैसे GDP, एग्रीकल्चर, फूड सब्सिडी, बट द गुड पार्ट एंड आई वुड से इट इज़ द ब्यूटी ऑफ GS3, ये सबसे ऑब्जेक्टिव सिलेबस है। इसमें सबसे ज़्यादा UPSC ने खुद एक्सप्लेन किया हुआ है कि करना क्या है। तो इसका सिलेबस इज फर्स्ट थिंग यू कैन सी। अगर आपने नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद GS3 बिकॉज यू विल हैव अ मच मोर क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। फूड प्रोसेसिंग जो कीवर्ड्स मैं बोल रहा था वो सब इसमें स्पेसिफिकली लिखे हैं। तो इकोनॉमी इज़ वेरी मच इलेबोरेटिव। इंटरनल सिक्योरिटी और DM आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये भी हमारा सिलेबस में आता है ना। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस इज आई वुड से पैराडॉक्स ओनली कि ये जो पार्ट है ना ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है और ये सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन देखोगे ना, देयर इज अ टॉपिक विच इज साइबर सिक्योरिटी। अब ये किस में आएगा, इन सब में किस में आएगा वो, इंटरनल सिक्योरिटी। अब आधे लोग तो पढ़ते ही नहीं है। अब आप PYQ देखोगे ना, विदाउट फेल हर साल इस पर क्वेश्चन आता है, विदाउट फेल। अब जब आपने PYQ नहीं देखे हैं, सिलेबस नहीं देखा है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप आंसर लेके आ जाओ। और जब आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी, तो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी और DML काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है, चीज़ें नोन है, तो आप ये चीज़ें ऑब्वियसली कवर करनी है। उसमें भी दिए हुए मनी लॉन्ड्रिंग लिखा है, बॉर्डर इश्यूज लिखा है, वो सब चीज़ें देखो और फिर प्रायोरिटाइज कर सकते हो PYQs से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। जैसे पेपर 3 में ये एक है फोर्सेज एंड देयर मैंडेट, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट, आई थिंक लास्ट पॉइंट है। इतना ज़्यादा वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अ लॉट ऑन दैट, आई वुड से साइबर सिक्योरिटी पे पहले फोकस करो ना। अगर ये हो गया उसके बाद उस पर काम करो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रायोरिटाइज योर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी, एवरीथिंग। फिर साइंस, SNT एंड एनवायरनमेंट, ये तो है ही करंट अफेयर बेस्ड, प्लस सम बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे नैनोटेक है सिलेबस में लिखा हुआ, बायोटेक, नैनोटेक भी वर्ड लिखा हुआ है सिलेबस में, और उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली। तो वो टेक्नोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन कहाँ का, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में कैसे होती है। उसके बाद करंट अफेयर से लिंकअप कर लो, करंट अफेयर के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लो। लास्ट 1 ईयर में स्पेस के बारे में सबसे ज़्यादा इश्यूज रहे हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज देर इज़ नॉट मच ऑब्जेक्टिविटी इन दीज 2 सिलेबस एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। तो प्रायोरिटाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर की हैपनिंग से करो। क्लियर है अब तक?
मेंस के लिए आइडिया मिल गया कैसे करना है. सो कंसिस्टेंसी, समवन वाज आस्किंग मी ऑनलाइन कि आप उसको कंसिस्टेंट आपके एफर्ट्स आते कैसे थे. बिकॉज आई है टाइम टेबल. टाइम टेबल डजेंट मीन कि यार मतलब जैसे बचपन में बताया जाता है कि सिर्फ आप लिख लेते हो 2 से 3 क्या करोगे, 4 से 5 करोगे. दैट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. टाइम टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिसिप्लिन एंड ब्रिंगिंग कंसिस्टेंसी. सो देयर इज़ अ बुक बाय जेम्स क्लियर. उनकी बुक है एटॉमिक हैबिट्स. तो उनमें उन्होंने यही बात बताई है कि कैसे आपकी स्मॉल एक हैबिट होती है ना कंसिस्टेंसी की, तो हाउ इट कैन ब्रिंग चेंज इन यू. जस्ट टू गिव, अगर आप 1% भी रोज चेंज होते हो ना और इसको मेंटेन करते हो अकॉर्डिंग टू हिम, एंड दिस इज मैथमेटिकली प्रूवन, तो इन 365 days you will be 38 times better what you are today, provided you are doing it daily 365 days. सिमिलरली चिल मार देते हो, नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, 1% ही आपका 1% ही आपका कम हो रहा है, बट आफ्टर 365 days you will be 0.03% of what you are today. तो सिंस इंजीनियर हूँ थोड़ा मैथमेटिकली बात करता हूँ. इफ़ यू आर हेयर तो आफ्टर 365 days you will be here, and if you are, ये उनकी बुक में है, you can obviously Google search and this is the diagram you will get. So this is the importance of power of timetable. It gives you that consistency to not improve let's say 100%, but at least वो delta 1% तक आपका improvement आ जाता है. So that is why timetable is important. Have it on a broader base. जैसे मैंने आपको बोला मुझे 6 महीने में क्या करना है, मेंस के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करनी है, अपने एटलीस्ट नोट्स और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, पैरेलली ऑप्शनल पढ़ना है, तो ये सब चीज़ों का एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बना लो, एंड देन डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट 1 month, एंड देन डिवाइडेड इनटू अ डेली लेवल. हम लोग क्या है ना, वो डेली लेवल वाला ही दिमाग में रखते हैं, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम टेबल क्या होता है. टाइम टेबल इज़ टू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन इन यू. So that is how you need to bring that consistency, and it will help you in bringing consistency. आपको पता है मुझे 3 महीने में क्या पढ़ना है, इस महीने क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, तो आप डाइग्रेस हो गए ही नहीं. चाहे कोई नई वीडियो भी आएगी, पहले आपको पता है ना मुझे पहले इस दिन में क्या चीज़ें करनी है. आज मैंने अगर फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है तो मैं फूड प्रोसेसिंग पहले पढ़ूंगा ना, फिर ऑप्शनल पढ़ूंगा, फिर न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, फिर करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ूंगा, फिर जाके अगर किसी ने कुछ नया ज्ञान दिया है तो वो देखूंगा. तो इतना टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास. तो पहले ऐसे डिवाइड करके अपना माइंड में क्लैरिटी रखो. 6 months, next 6 months you should give to mains more and optional. Mains includes GS and optional both, and then after January February consistency. Sorry, How to improve consistency? टारगेट बढ़ाओ यार अपने प्लान में. ये 1% बोला है, आप इसमें 5% लेके चलो तो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी कंसिस्टेंसी. गिव योर सेल्फ लिटिल मोर एम्बिशियस टारगेट्स, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे. एंड इसका एक और मतलब साइकोलॉजिकल आई वुड से मेडिकली प्रूवन इम्पैक्ट है कि जब भी आप कुछ अचीव करते हो ना, देयर इज़ अ डोपामिन रिलीज इन योर बॉडी. यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू फील कि हाँ मैंने कुछ किया है. अगर आप रोज़ जो प्लान बनाया है ना, उसमें जब लास्ट रात को सोने से पहले ऐसे टिक लगाओगे ना, ये सब मैंने कर लिया, तो वो जो फीलिंग आएगी ना, दैट विल गिव यू मोटिवेशन टू कंसिस्टेंटली डू इट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 6 months, नेक्स्ट 1 year. So that is how you prepare yourself. So till now I am just talking about how to prepare yourself, and to be very honest, this is what you should learn from others also, कि how to prepare. जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था ना, डोंट एक्सपेक्ट समवन टू डायरेक्टली स्पून फीड यू. यू शुड ओनली अंडरस्टैंड कि कैसे चलना है, बिकॉज चलना तो फिर आपको खुद ही है. तो that is what you should also do. Have a timetable, have something, all these things in my mind. तो मैंने तो इनफैक्ट जस्ट टू मेंशन इट इनफॉर्मली, मैंने तो इनफैक्ट अपने फादर और ब्रदर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, जिससे मैं रोज़ अपना टाइम टेबल डालता था कि आज मेरा ये टाइम टेबल है. जिससे कि ये होता था कि एक एक्सटर्नल चेक हो जाता था कि मेरे को रहता था कि यार मैंने उनको भी दिखा दिया है तो मुझे पूरा करना ही है. तो इस तरह से भी थोड़े टिडबिट्स मैं करता था, सो एज टू रिमेन ऑन ट्रैक, क्योंकि कई बार आप खुद से इतने मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो.
again it's entirely up to you, and I think yeah, all of you are mature enough. You have to understand the importance, then only you can do it. This is the very most importance of timetable, because UPSC also seeks discipline and dedicated hard work. तो हार्ड वर्क करने की मोटिवेशन यहाँ से आती है, क्या करना है मैं आई मैंशनड यू. सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. तो स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क आता है, बट स्मार्टली आता है. जैसे मैं एवरीथिंग अंडर द सन पढ़ रहा था, दैट वाज आल्सो हार्ड वर्क, बट दैट वाज नॉट स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क वाज आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू यूपीएससी सिलेबस. तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क बट स्मार्टली. अगर कोई आपको बोल रहा है डायरेक्टली सिर्फ बिना हार्ड वर्क के यूपीएससी हो सकता है, तो नहीं हो सकता. आई विल ऑल्सो से द सेम थिंग, यू नीड टू डू हार्ड वर्क बट डू इट स्मार्टली, एंड यू दिस इज हाउ यू कैन डू दी स्मार्टनेस. ठीक है, सो मेंस डन है. 3. Sir, how to do the hard work? यार ये तो वही बात हो गई, रामायण खत्म हो गई, सीता कौन थी. ऑल्सो फॉर ऐसे, कई लोगों को ये मिथ होता है कि ऐसे में हमें बहुत फ्लावरी लैंग्वेज लिखनी है, कि इंग्लिश में हमें बहुत मास्टर होना चाहिए. ऐसा नहीं है. दैट इज़ वेयर आई सेड ना, आप एडिटोरियल्स पढ़ के देखो, बहुत सिंपल आर्गूमेंट से आर्गूमेंट डेवलप होते हैं यार, बहुत सिंपल पॉइंट से. तो सिंपल लैंग्वेज में ही रखना है, शॉर्ट सेंटेंसेस, एंड दे शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर एंड टू द पॉइंट. यार वो टॉपिक वाइज कीवर्ड्स होंगे ना, वहाँ से वोकैबुलरी आएगी. जैसे अगर वो मुगल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुगल आर्किटेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट विल बी योर वोकैबुलरी. जो आपकी कोई इंग्लिश की अलग से वोकैबुलरी नहीं होगी. जैसे हम पढ़ते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें सब पढ़ते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज. ये कीवर्ड है, ये आपकी वोकैबुलरी है. अब आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्वेश्चन में अगर ये 3 चीज़ें नहीं है और आपने पूरा ग्रंथ लिख दिया है, तो यार फिर कैसे एक्सपेक्ट करोगे वो मार्क्स से, है ना. So that is first thing with respect to answer writing. Second important thing with answer writing is again कि हम ना ये नहीं लिखते हैं जो पूछा गया है क्वेश्चन में, हम ना ये लिखते हैं जो हमें आता है. और ये मतलब सभी का प्रॉब्लम है. हमारा एजुकेशन सिस्टम, आई डोंट ब्लेम यू, ये हमारा जनरल एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम ट्रेंड हो जाते हैं क्वेश्चन में ना. जैसे क्वेश्चन है कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ लिख ही देता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज replacing government in welfare activity. Comment. यार मैंने कुछ दिन पहले भी एक जगह डिस्कस किया था, तो सेम क्वेश्चन लिया, वेलफेयर एक्टिविटी. ठीक है, ये अब क्वेश्चन है. अब हम क्या करेंगे, जो जनरल लोग करते हैं, जो मैं भी पहले करता था. यार मुझे ना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्ड दिख रहा है, ये मेरे नोट्स में भी है, तो जो मुझे आता है ना सब कुछ लिख देता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप पर. कितने पेज लिखने हैं? 4 पेज लो, 4 पेज लो. 5 पेज लो. ये नहीं करना है यार आंसर राइटिंग में. आंसर राइटिंग में लिखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप गवर्नमेंट की कैसे एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर रहा है, ये पूछा है. तो आप ये लिखो कि जो गवर्नमेंट काम करती थी, अब कैसे वो काम सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहा है. तो इससे आपके वर्डिंग्स होंगी. नॉलेज आप मे बी वही यूज़ करोगे, बट वर्डिंग्स हैज़ टू बी इन दिस फैशन कि गवर्नमेंट जो पहले वल्नरेबल सेक्शन को रीच आउट करती थी, सबको नहीं रीच आउट कर पाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है. जैसे कोविड में हमने देखा कितने सारे NGOs लंगर लगाते थे. कितना सिंपल पॉइंट है, ऐसे लिखना है. तो यार जो आता है ना वो नहीं लिखना है, जो पूछा है वो लिखना है. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ बिग मिथ अबाउट आंसर राइटिंग, और वो हमारे नेचुरल होता है. सब लोग नेचुरली जो आता है ना वो डू दिस. जो क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्लू आ जाए, जिसकी कोई हवाई ना हो, जैसे इस बार था ब्लू LED पे क्वेश्चन था, GS3 में अगर तुमने देखा हो तो दैट इज़ वेरी रेयर, आई डोंट टच अपॉन इट, बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो आप ये करो, हर एक टॉपिक में ऐसे ही आंसर राइटिंग करो, है ना. अभी मैंने ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन लेके उसका आंसर का एक पॉइंट आपको बताया. तो राइट, सो ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? फर्स्ट आई विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स हियर, फिर हम ऑनलाइन जाएंगे. हाँ जी. मैं बोलूँगा कि डू इट वंस यू हैव बेसिक नोट्स, बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना. जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई ना सिलेबस वाइज नोट्स बनाने की, एटलीस्ट थोड़ा वो कर लो कुछ टॉपिक के लिए, उसके बाद आंसर राइटिंग पे जाओ. जैसे 70% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद टॉपिक वाइज जाओ. पूरा सिलेबस का फर्क ही नहीं पड़ता है. मैंने आज प्रेशर ग्रुप पढ़ लिया है, तो अब मैं प्रेशर ग्रुप पे आंसर लिख सकता हूँ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक वाइज चलो.
सिलेबस 70% तो कभी नहीं होगा। टॉपिक वाइज चलो, ये है ना, समुद्र इतना बड़ा क्यों करते हो यार, इतना फिल्टर डाउन करो ना, छोटा करो। लकीली अगर ये बात नेगेटिव है कि बहुत बड़ा सिलेबस है तो अलग अलग टॉपिक है तो अलग अलग चीज़ें भी तो कंप्लीट हो सकती है ना। इंटरलिंकेज बाद में करना, पहले कम से कम जो टॉपिक स्टैंड अलोन है उनका तो करो। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम क्लास? हाँ जी। आप बोले कि 70% होता ही नहीं, तो एज इट मैं पकड़ रहा हूँ 30% नहीं होता, तो कौन से 30% होने चाहिए जो नहीं है? यार मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आप नोट्स भी अगर बनाते हो ना, तो नोट्स में से भी आपको 100% याद नहीं रहेगा। याद भी रहेगा तो आप 100% लिख नहीं पाओगे। तो टू दैट एक्सटेंट बट आई मेंट वाज 70%। नोट्स तो आपको कीवर्ड तो सारे कवर करने हैं। आप ये नहीं बोल सकते मैं साइबर सिक्योरिटी के नोट्स नहीं बनाता हूँ, 30% में मेरे लिए, वो तो आपको करना ही है। यू हैव टू डू दैट। हाँ जी। What was your approach regarding sociology as I'm having the same option? उसमें 1 घंटा और लग जाएगा यार। तो बट उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग बेसिक फंडामेंटल्स ऐसे ही रखो, सिलेबस वाइज चलो और PYQs लगाओ। सिलेबस वाइज उसके भी कीवर्ड्स के नोट्स वगैरह बनाओ। इट विल बी मच मोर इलैबोरेटिव एंड एक्सटेंसिव बिकॉज है ही ऑप्शनल और डेडिकेटेड सब्जेक्ट है। मार्क्स में 1 पेज में नहीं होगा मार्क्स। जो टाइम है उसको लगाओ बट डू PYQs, दैट इज हाउ यू नीड टू डू इट। सर ये स्ट्रैटेजी आप बता सकते हैं एक ब्रॉड वे में, लाइक कैसा होना चाहिए ईयरली स्ट्रैटेजी? यार आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट। आपको अभी फॉर फर्स्ट 6-7 मंथ्स अगर 23 कर रहे हो फोकस, तो नेक्स्ट 6-7 मंथ्स डेडिकेटेडली मेंस रिगार्डिंग करो काम फॉर बोथ GS एंड ऑप्शनल। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में है ना पेपर, कब है? मई में। हाँ, तो मई से 3-4 महीने पहले फिर प्री ओरिएंटेड कर लो। तो डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेज यू आर, इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल इन प्री और मेंस में इस अप्रोच के बाद लग रहा है कि मेरा हाथ तंग है तो मेंस को ज़्यादा टाइम दे दो, नहीं तो ऑटोमेटिकली फ्यू मंथ्स 1-2 मंथ्स प्लस माइनस। ऑप्शनल यार व्हेन आई एम सेइंग मेंस तो इट इंक्लूड्स GS एंड ऑप्शनल बोथ। Sir, what should be the approach towards the optional? Because it may be like our GS papers, like we have to just gain the knowledge about what is the content provided by the book, and we have to write. Or we should apply the practical knowledge in our questions, based questions. यार आई कैन नॉट कमेंट ऑन एवरी अदर ऑप्शनल पर से, बट समवन इन द क्लास आस्क्ड अबाउट सोशियोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल था। तो आई इफ आई टॉक अबाउट इलैबोरेटिव स्ट्रेटजी लाइक दिस ऑन ऑप्शनल तो बहुत टाइम लग जाएगा। एंड जस्ट टू समराइज जो मैंने अभी बोला भी था, आई रिआइटरेट इट अगेन। फंडामेंटल्स यही रखो विद रिस्पेक्ट टू योर अप्रोच टुवर्ड्स ऑप्शनल कि मुझे सिलेबस और PYQs से रिलेटेड ही पढ़ना है। वहाँ भी जो भी टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है वहाँ उसके हिसाब से ही अपने नोट्स बनाने हैं, उसके हिसाब से ही PYQ सॉल्व करने हैं। एंड देन यू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। इफ़ यू एक्चुअली विल डू दिस थिंग ना, तो ट्रस्ट मी इट विल टेक टाइम एंड दैट इज़ वेयर यू नीड ऑब्सेशन, कि आपको वो सेटबैक ना लगे यार मैं क्यों कर रहा हूँ, एक ही चीज़ दोबारा इतना क्यों पढ़ रहा हूँ। That's why you need obsession and it will take time. Give time. It is worthy to give time in this rather than seeing 10 number of videos on newspaper analysis. It will take time. Don't be disheartened. Be patient. Gradually होगा, टाइम है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई कैन से कि क्या आपको डायरेक्शन होनी चाहिए। आई थिंक फिर हो जाएगा। Sir, I have a doubt regarding the newspaper. So first thing I will bring to ask that what should be the range, Last question. the optimum range for the news to be covered. Secondly, I would like to ask that to substantiate our points, many politically inclined articles do also have some takeaways, like LG has suspended certain officers, IAS officers recently. So it can be a takeaway for ethics portion. So I just need to ask for substantiating items. Would you like to suggest any such material which can be the best for the substantiating words like PIB or certain down to or something like that? यार यू शुड रीड न्यूज़पेपर ओनली, मतलब रादर देन गोइंग टू अदर प्लेसेस। आप पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ो, उसमें किसी टॉपिक में कोई और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो फिर PIB से रेफ़र कर लो, या बट एज योर जो इससे पहले क्वेश्चन में था कि एग्जांपल ऑफ सिविल सर्वेंट्स को जो किया है पॉलिटिकली वाला, तो ऑब्वियस है यार ऐसे पॉलिटिकली तो नहीं लिखोगे। यू कैन जस्ट से कि रिसेंटली सिविल सर्वेंट्स वर जो भी है दे वर ट्रांसफर्ड, ऐसे करके लिख सकते हो। तो अभी एक उससे पहले भी एग्जांपल हुआ था जब हरियाणा में
एक IAS ऑफिसर का एक इंस्टेंस हुआ था, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट नेम एनी ऑफिसर एज सच, आप लेकिन उसको एक एग्जांपल की तरह लिख सकते हो कि दैट शोड लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ऐसे करके लिख सकते हो आप. जस्ट यूज इट एज अ एग्जांपल टू सब्सटेंशिएट, और कहीं आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. न्यूज़पेपर से बेटर कोई सोर्स नहीं है टू डू इट. So would you have observed any range of news that from this month, this year, range from Yeah. this June? जनरली मेंस में 1 साल का ही रहता है, क्योंकि उससे पहले वाला लास्ट ईयर कवर हो जाता है. और न्यूज़पेपर इज समथिंग, पहले आप आज का तो पढ़ लो फिर ही दूसरा पढ़ सकते हो. लोगों से उस दिन का ही नहीं होता है, तो पहले आप आज का पढ़ो, आप बहुत एफिशिएंट हो तो फिर बैकडेट लेना उठाना शुरू करो, बट पहले आज का तो पढ़ लो. Sir, can you also suggest this Yojana Kurukshetra down to a PIB? Should we approach over there or not? Or यार अगेन एंड दैट गोज फॉर एनी मटेरियल और एवरी मटेरियल विच यू स्टडी. हमेशा उस चीज़ को UPSC सिलेबस से इवेलुएट करो. योजना भी अगर आपकी किसी टॉपिक से लिंक आ रही है तो पढ़ो, और जनरली वो होगी तो उस टॉपिक से रिलेवेंस के हिसाब से ही उसको पढ़ना. बहुत ज़्यादा उसको एक अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है योजना की, बस उस टॉपिक से जो लिंक है, कोई उसमें स्कीम एक्स्ट्रा लिखी है, कोई फैक्ट एक्स्ट्रा लिखा है, कोई आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा लिखा है, बस उतना लेके रख लो ऑन दैट योर ओन नोट ऑफ दैट टॉपिक. So everything which you will read from now, I think you should always evaluate it from the perspective of GS syllabus. I think तभी मैं आपके सामने GS syllabus बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड में है और आपके माइंड में भी. कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे 16 to 17 प्रोवाइड कराते हैं, फिर भी दे आर रेफरिंग टू बाय सम अदर सोर्सेस, सो शुड बी बाय देम और नॉट? 16 to 17 क्या? The coaching institutions are providing like 16 to 17 books in their coaching. हाँ हाँ. So, sir, they are also referring to purchase some more books like the geography or math. So, should we need to purchase them? हाँ यार, आप उनको पहले, अब क्योंकि आई हैव नॉट रेड सबके मटेरियल पे तो मैं कमेंट कर नहीं सकता हूँ, बट आपका यार्डस्टिक टू इवैल्यूएट एनी मटेरियल शुड बी PYQs. अगर आप अपने मटेरियल से PYQs 100% सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर उस पर रिस्ट्रिक्ट रह के उसको कंसाइज कर लीजिए. नहीं कर पा रहे हैं तो जो एडिशनल बुक्स बताई है वो एक बार रेफर कर लीजिए. तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल सर्च करके पढ़िए. यार हाँ, मतलब यू कैन फॉलो ऑन टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे ना, तो यू कैन जस्ट लीव कमेंट्स इफ आई फाइंड इट. अगर मैं आंसर दे पाऊंगा तो मैं कर दूंगा, अगर मेरे नॉलेज में होगा तो. हाँ भाई. Sir, during the course of preparation, we failed to confine ourselves as being apolitical, or we failed to be objective about the happenings or developments, and we tend to polarize, either being scathing critics of the government or declared supporter of the government. So, how to negate with that transitional polarization? यार ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब मैंने कहीं अपनी डिस्कशन में ऐसा एस्पेक्ट किया ही नहीं है. तो ये पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये माइंडसेट ही हटा दो कि मैं किसी आइडियोलॉजी से लिंक अप हो रहा हूँ. आपको बस ऑब्जेक्टिवली सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को इवैल्यूएट करना है. अगर हो भी रहे हो तो लीव इट, अदरवाइज एंड जस्ट स्टार्ट. कोई बात नहीं यार, लीव इट एज इज. आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो, आप बस ऑब्जेक्टिव सिलेबस पे अटैच रहो कि मेरे सिलेबस में क्या लिखा है और उसके हिसाब से मुझे क्या आता है और मैं उसके हिसाब से कितना लिख पा रहा हूँ. तो आंसर राइटिंग भी आई टच्ड अपॉन, क्या पढ़ना है भी आई टच्ड अपॉन, कैसे पढ़ना है भी आई टच्ड अपॉन. तो आई थिंक, आई होप इट हेल्प. ओके. टेस्ट सीरीज कितने मंथ के लिए सस्पेंड है? टेस्ट सीरीज यार आई टॉक अबाउट इट लेटर. मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड बताया. आप टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे आई पुट अ वीडियो ऑन आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज, तो वहाँ आप देख सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. ओके, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू.